Good morning students, welcome back to our online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation because so much fastly this COVID-19 virus that will be spread out into our nearby places. So I request you to you unnecessary able to go outside your homes. If there is necessary, then use the properly form of mask. Always use the sanitizers and when in home, always wash hands within a 20 seconds of 3 to 4 hours duration. So request you to you stay home and stay safe. Right? Now students, let's discussing about our main topic, that is chapter number 14, natural resources. In this chapter, in the first part, we are discussing about what is called natural resources, what is called exhaustible resources, what is called inexhaustible resources, in which what is called renewable and what is called non-renewable resources. Also we are discussing why all these fall as a treasure of elements, in which biosphere is there, hydrosphere is there, atmosphere is there, lithosphere is there. Also we are discussing about the detailed notes on atmosphere, which is divided into the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Also we are discussing about the wind as a part of air, how the air that can be formed, why it is very important, how the air pollution that can be caused, how the wind that can be formed. These are the topics we are discussing. Also we are discussing about how the rain that can be occurred. Also how this type of the water that can be implemented for the human lives and how the water pollution that can be generated. Also discussing about the formation of soil, what is called soil and how the soil formation that can be taken place, in which sun is responsible, water is responsible, lichens is responsible and wind is responsible for formation of soil. So these are the topics that we are discussing in your first part, but today we are discussing about the cycles, in which the biogeochemical cycle as well as the water cycle, oxygen cycle, greenhouse effect and ozone layer. These are the topics that we are discussing on our today's lecture. Now let us start our topics in a form of detail. First we are discussing about biogeochemical cycle. Now what is meaning of biogeochemical cycle? First of all, so each and every living organisms who are living in the particular ecosystem, they need to be energy to be survive their life, right? They need to be energy, and energy that can be obtained from the food. Energy कहाँ से मिलेगा? फूड के अंदर से मिलेगा. If you don't get the food properly, you can't get the energy. You can't get the energy in a specific form. So food is generally one of the important medium which provide us to energy. So इसमें हम देखते हैं कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड है. That is mostly depend on the nutrition. Now, if we see about the ecosystem, now what is called ecosystem? So all the living organisms, in which plants, animals, microorganisms and the living organisms around of us, physical surrounding in which we have to be interact, that is called ecosystem. और इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक बायोटिक इकोसिस्टम आता है और दूसरा अबायोटिक इकोसिस्टम आता है. बायोटिक इकोसिस्टम इट मींस द लिविंग फॉर्म, जिसमें आपके कंज्यूमर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे. बायोटिक इकोसिस्टम जनरली कंटेन द टू मेन थिंग्स, which is called the consumers and the producers, while the abiotic ecosystem that consumes the temperature, soil types, pressures, etc., the moisture, humidity, these are called as the abiotic. But as a part of biogeochemical cycle, now the biogeochemical cycle generally implementation, the transfer of the nutrition from the atmosphere to the organism and return back from the organisms to the atmosphere, that create a cycle which is called biogeochemical cycle. तो जो न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनवायरनमेंट में से ऑर्गेनिजम्स के अंदर और फिर से ही ऑर्गेनिज्म में से एनवायरनमेंट में से रिटर्न बैक होता है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है एक साइकिल क्रिएट करती है जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं. नाउ तो इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स है जिसमें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जैसे दो आते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. दे जनरली प्रोड्यूस देयर ओन फूड. उसमें केवल एक ही आता है जो है ग्रीन प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो only the green plants are the that kind of the organism who produce their own food by using the photosynthesis process. इसमें सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, इसका यूज करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, और उसको प्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एंड दैट इज मोस्टली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी.
अब ये एनर्जी जो उन्होंने स्टोर की है वो अपने लिए तो प्रोड्यूस करते हैं, बट दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं दैट एनर्जी। सो ये प्रोड्यूसर्स का यूज कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। अभी कंज्यूमर्स में 4 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है हेर्बिवर्स, फिर ऑमनिवर्स, कार्निवर्स, फिर ऑमनिवर्स और डिकम्पोजर्स। हेर्बिवर्स, कार्निवर्स, ऑमनिवर्स एंड डिकम्पोजर्स। हेर्बिवर्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स है जो इस प्लांट्स का यूज करते हैं पार्ट ऑफ एनर्जी। फिर हेर्बिवर्स का यूज कौन करते हैं? अपने कार्निवर्स करते हैं। कार्निवर्स का यूज कौन करते हैं? ऑमनिवर्स करते हैं। ऐसे जो है पूरा का पूरा फूड चेन और फूड वेब क्रिएट होता है। सो एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर होते रहता है। दैट कैन बी चेंजेस। अभी फिर से एनवायरनमेंट में से कैसे रिलीज होगा ये मैंने आपको समझाया कि एनवायरनमेंट में से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म में से एनवायरनमेंट में जाना चाहिए। ये यूनिडायरेक्शनल है। ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक बार एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो इट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक, आप उसको फिर से वापस नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स की एनर्जी का यूज अगर कार्निवर्स करता तो क्या कार्निवर्स उस एनर्जी को फिर से प्लांट्स में दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा तो क्या केमिकल को फिर से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शन, एक ही फ्लो के अंदर वो मूव करता है, कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। सो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इनके जो बॉडी के सेल वॉल्स होते हैं उसमें से अपने न्यूट्रिशन को सर्वाइव करते हैं डिकम्पोजर्स, और फिर से वो एनवायरनमेंट में उस सारे सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। सो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, तो पूरा एक साइकिल क्रिएट करता है जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो है वह एनवायरनमेंट में से ऑर्गेनिज्म में और फिर से ऑर्गेनिज्म में से अगर एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली रिवर्ट बैक होता है, वो साइकिल जो क्रिएट करता है उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, राइट। चलिए दूसरा टॉपिक हम समझेंगे वो है हमारा वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल तो आपको पहले भी पता है कि वाटर का जो साइकिल है कि एनवायरनमेंट लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से फिर से लिथोस्फीयर के अंदर जो वाटर और उसके जो मॉइस्चर है वाटर के वेपर का, उसका कंटिन्यूअसली रोटेशन जो होता है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो कंटिन्यूअसली रोटेशंस ऑफ द वाटर वेपर एंड द ड्रॉपलेट फ्रॉम द लिथोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर टू लिथोस्फीयर दैट क्रिएट अ स्पेसिफिक साइकिल, जिसको वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि H2O है तो उसको आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं ना। वाटर साइकिल कैसे फॉर्म होता है और द वाटर साइकिल दैट कैन बी फॉर्म। अभी वाटर साइकिल को फॉर्म होने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल है एक्वाटिक्स बॉडी एंड द सोलर रेडिएशन। तो जो एक्वाटिक्स बॉडी है जिसमें से आप देखिए ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं, रिवर्स भी आते हैं, सीज भी आते हैं, पॉन्ड्स भी आते हैं, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वाटर एक्वाटिक्स रिजर्वोयर्स ऑफ बॉडी के फॉर्म में काम करते हैं। तो व्हेन द सोलर रेडिएशन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑनटू द सीज, उसके जो वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वार्म अप होता है, हीट होने लगता है, दैट शुड बी स्टार्ट टू बी हीटेड। अब जब वाटर हीट होने लगेगा तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो गैसेस फॉर्म के अंदर वाटर का वेपर जो है वो क्रिएट होगा, और वाटर का वेपर जो है वो काफी हैवी डेंसिटी वाला है, तो दे ऑलवेज स्टार्ट टू बी मूविंग ऑन टू द लोअर डेंसिटी। हाई डेंसिटी से कहाँ मूव करेंगे? लो डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो हाई डेंसिटी वाला जो वाटर वेपर है दे स्टार्ट टू बी मूविंग ऑन टू द लोअर डेंसिटी, लो डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ऊपर जाएंगे वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा, और कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा तो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ऐसे ही वाटर के ड्रॉपलेट्स मिक्स होकर एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट बनता है और वो रेनफॉल के फॉर्म में काम करता है। अब ये जो रेनफॉल होता है अर्थ पे फिर से वाटर वो डायरेक्टली फिर से नहीं चला जाता है ओशियन से रिवर्स के अंदर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो लैंड होते हैं वो उसका एब्जॉर्ब करते हैं, जो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिजर्व के जैसा काम करते हैं। बाकी के वाटर जो है वो फिर से सी और ओशियन के अंदर रिवर्ट बैक करते हैं, और फिर से सोलर रेडिएशन आता है, हीट होता है, कंडेंसेशन होता है, रेन आता है। तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस एटमॉस्फेयर से लेकर लिथोस्फीयर तक कंटिन्यूअसली रोटेट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम वाटर साइकिल या तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं, राइट। चलिए तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखिए आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, क्या ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कैसे इसकी इफेक्ट्स होते हैं। नाउ सडनली अभी कभी-कभी आप देखते हो कि देयर इज अ वेरी मच सडनली क्लाइमेट दैट विल बी चेंज, रेनफॉल इज देयर, वेरी समर लाइक सिचुएशन इज देयर, सडनली रेनफॉल दैट कम्स, दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। And due to climate changing, there is a one important medium which is responsible, that is called carbon.
when the carbon that can be excess amount of carbon which is released into the atmosphere. For example, आप क्या करो, किसी भी एक सब्सटेंस को हीट करो, वाटर को, और उसको बंद कर दो किसी में, और फिर बाहर के सब्सटेंसेस दोनों का आप टेम्परेचर देखोगे तो इनसाइड वाला टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आपने उसको हीट किया है। तो कार्बन के सब्सटेंसेस जितना से जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते जाएंगे, एटमॉस्फेयर और उतना हीट होता जाएगा। तो आउटर एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा हीट हो जाएगा कंपेरिजन टू द इनसाइड। तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका मेन जो सब्सटेंसेस है वो है कार्बन। कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज करते हैं तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएटेड करता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत तरह के इश्यूज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। एसिडिक रेन है, दिस ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच कैन बी जनरेटेड विद द क्लाइमेट चेंज, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो क्लाइमेट चेंजेस जो है अभी बहुत बड़ा इशू है इन द रिसेंट टाइम्स। द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट दैट हैव बीन अ बिग चैलेंज टू अस एज वेल एज द एंटायर यूनिवर्स। अभी हम लोग बहुत अलग अलग कंट्रीज जो है वो इस तरह के डिस्कशन करते हैं, ग्लोबल समिट करते हैं अबाउट द क्लाइमेट चेंज। रशिया है, इंडिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये सारे कंट्रीज मिलकर क्लाइमेट चेंजेस पे जो इफेक्टेड होता है, तो क्लाइमेट चेंज पे क्या हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी रिड्यूस द चेंजेस इन द क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट जितना ज़्यादा चेंज होता जाएगा आपका एनवायरनमेंट और उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जाएगा, और वैसे सिनारियो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना काफ़ी हार्मफुल हो जाएगा। अलग अलग तरीके के डिजीज क्रिएट होंगे, एज जो है हमारी रिड्यूस होती जाएगी, लंग्स इफेक्टेड होंगे, स्किन डिसीज होने लगेंगे, ऐसे बहुत तरह के प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जिससे कैसे हम आने वाले फ्यूचर्स नई स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्लाइमेट चेंज हमें रोकना जरूरी है। उसके लिए जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो कार्बन जो रिलीज होता है उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। दैट इज अबाउट द ग्रीन हाउस, राइट, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं केवल इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट को इफेक्ट करेगा, वो एंटायर यूनिवर्स को इफेक्ट करता है, इसलिए उसको आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो हमारा है ऑक्सीजन साइकिल। देखिए ऑक्सीजन जो है वो एक बहुत ही एबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ के सरफेसेस पे। ऑक्सीजन is a very abundant element that can be seen on the surface of earth के surfaces पे। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर 21% है, 21% जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है। और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है तीन मेन ऐसे प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किसमें? एक तो रेस्पिरेशन के लिए, एक ऑक्सीडेशन के लिए, और एक बर्निंग प्रोसेस के लिए, कंबंशन प्रोसेस के लिए। अभी जनरली ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है अलग अलग फॉर्म में हमें मिलता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्साइड फॉर्म में है, कभी सल्फाइड कार्बोनेट, ऐसा अलग अलग फॉर्म में ऑक्सीजन जो है हमें अवेलेबल होता है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साइकिल मतलब एक साइकिल क्रिएट होना चाहिए एटमॉस्फेयर से अंदर ऑर्गेनिजम्स का। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज कंबंशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में या ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। दे आर जनरली यूज, बट वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। इट कैन नॉट क्रिएट अ साइकिल। बट अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स जो होते हैं, द प्लांट्स जनरली एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं। सो ऑक्सीजन विच कैन बी रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर विच कैन बैलेंस द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। So it creates a specific cycle, इसको आप कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। So every organism have a necessary to use the oxygen for surviving their life. Actually जो प्रोटोटिक सेल्स है, बैक्टीरिया है, ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो है आपको प्रोपोर्शंस ऑफ द फॉर्मेशन जिसमें एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोटिक यूकेरियोट्स के अंदर यूज करते हैं, जो हमारे सेल रेस्पिरेशन के लिए सेलुलर फॉर्म में यूज है। तो ये जो ऑक्सीजन है मोस्टली यूज बाय ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स for the maintaining of life, survival of their life in the ecosystem. So these are the very important and necessary substance for the life onto the earth, that is called oxygen creation, right? Now the last topic of this chapter, that is called ozone layer. ozone layer के बारे में डिस्कशन करते हैं। ozone layer क्या है? सबसे पहले तो ozone layer जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है, ओके। और ओजोन का मेन काम क्या है कि जो सनलाइट के अंदर से जो हैवीली अल्ट्रावायलेट रेज जो जनरेट होती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशंस क्रिएट करते हैं, ये हैवीली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करना और उसको अर्थ की सरफेस पर डायरेक्टली एंटर होने से प्रिवेंट करना, ये काम किसका होता है? ओजोन लेयर का होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। अभी
ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ द ओजोन मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म। अभी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, राइट, ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, तो जैसे सनलाइट पास आउट होता है हैवीली अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है जिसको O2 कहते हैं वो ब्रेक होंगे और बनेंगे O+, सिंगल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको फोटोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। ओके, इस फोटोलाइसिस प्रोसेस के अंदर O2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगल ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड होंगे O+O, पर जो सिंगल ऑक्सीजन का एटम है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ तुरंत रिएक्ट करेगा O2+O और क्या बना देगा O3, और जो O3 मॉलिक्यूल बनता है उसको हम ओजोन के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। तो ओजोन का मॉलिक्यूल जो होता है वो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन जो है इसका सबसे मेन काम होता है, एक तरीके से ब्लैंकेट ऑफ अर्थ है, जो हैवीली अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के अंदर से रिलीज हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली अर्थ के सरफेसेस के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट करना, ये काम होता है ओजोन लेयर का। अभी ओजोन लेयर का दूसरा फॉर्मेशन आप देखिए तो ओजोन लेयर के अंदर अभी डिप्लेशन स्टार्ट हो गई, जैसे साउथ पोल रीजन और नॉर्थ पोल रीजन में बड़े बड़े पैचेस देखने को मिले 1819 में, 1920 में, 1950 में, ऐसे आप देखते जाओ ये जो पैचेस हॉल्स और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अगर पैचेस और होल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो ओजोन की जो डेप्थ है ना वो रिड्यूस होती जाएगी, और ओजोन की जो डेप्थ रिड्यूस होती जाएगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पे आएंगे, अर्थ के सरफेसेस पे आएंगे। तो अर्थ के सरफेसेस पे अगर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा, स्किन पे आएगा तो स्किन डिसीज को इंप्लीमेंट करेगा, आईज के थ्रू कैटरेक्ट को प्लांट करके आपको ब्लाइंडनेस क्रिएट करेगा, आपके डीएनए जीन्स पे इफेक्ट करेगा, ऐसे बहुत तरह के इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, ये डिप्लेशन भी हमारे ह्यूमंस के ही थ्रू हो रहा है। हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको बेटर बनाने के लिए एनवायरनमेंट को डे बाय डे स्पॉइल करते जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है CFC, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जैसे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है जिसमें क्लोरीन का पार्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो यानी कि क्लोरीन का पार्ट है। अब ये क्लोरीन जो है एटमॉस्फेयर में अगर रिलीज होता है, एक मोल अगर क्लोरीन रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में तो 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को ब्रेक करता है। केवल एक मोल क्लोरीन वो 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को एटमॉस्फेयर में से ब्रेक करता है, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो अभी जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर, इसका ज़्यादा एक्सेस से एक्सेस यूज कर रहे हैं ना, वही CFC को रिलीज करता है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, विच आर द मोस्टली सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में CFC को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है लेवल ऑफ क्लोरीन का। तो ये एक नियर ऑफ फ्यूचर बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम और ग्लोबल चैलेंज है हमारे लिए। तो ये सारे सब्सटेंसेस को आपको बहुत ही क्रिटिकली और जुडिशियली यूज करना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आज का सेशन जो है चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के टॉपिक्स को आप अलग अलग मीडियम से इम्प्लीमेंटेशन करके विजुअल मीडियम नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, स्टडीज को इंक्रीज कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने ऑन लैंग्वेज में क्वेश्चंस को राइट करने का प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।